वेलकम टू अपना कम्युनिटी। ये वो जगह है जहां आप अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, सबके पास स्किल्स होते हैं, पर क्या आपके अंदर वो स्पार्क है जो आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए लेकिन रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा, या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो फिक्र मत कीजिए। यहाँ हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगी बेहतरीन कम्युनिटीज जहां आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को सुधार सकते हैं। चाहे आप एक्सेल, टैली, जीएसटी में माहिर बनना चाहें, या फिर आप खुद एक ब्यूटिशियन या डिजाइनर हैं, तो यहां आप अपने काम को शोकेस करके दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगा मेंटर्स का एक खजाना और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साथ, जो आपको हर कदम पर 1-to-1 गाइड करेंगे। यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फील्ड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, जहां आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे सीख के आप वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। Good evening, everyone. Thanks for joining in. We'll be starting the session now. If you're attending these sessions for the first time, I would like to start with a quick introduction. This is a part of Apna Community Exclusives, a webinar series that we have been doing for the last couple of months. We host regular sessions at 7 p.m. on weekdays and between 3 to 5 p.m. on weekends, like today. So we're covering a wide range of topics like interview prep, resume creation, technical skills, product management, etc. So main objective of these events is to help you grow professionally and help in advancement of your career and get better jobs. Atau So gusto ko yun ba? Abla hon cheran dikhate. sorry, I have to move some. तो यार होता है. Okay. Cool. Sorry, guys. So today's session is about achieving your career goals. For this session, we have Shrikant with us. Sorry, someone is speaking. Yeah. So we have Shrikant with us. A quick intro about him. He has about 10 plus years of experience in building world-class B2B SaaS products. From scaling a startup to leading product initiatives at Adobe. He has crafted solutions for Indian SMBs and global markets. He has several years of experience as a mentor as well, and he has helped freshers and professionals across different domains. Thank you so much, Srikant, for joining us today. So, guys, as Srikant, before I hand it over to him, a quick note. If you have any questions, please feel free to ask on chat. We'll have breaks in between where you can also unmute and talk. But when Srikant is presenting, I would request any questions, any doubts, just put it on the chat and we'll address it. So, Srikant, I hand it over to you. Oh, thank you so much, Siddharth. Hello, everybody. It's so exciting to be here. Thank you so much for joining. Whoever is turning on their videos, thank you so much. It's so nice to see faces rather than talking to just the names. Today, I have some action-packed information that I would like to share, and a lot of learnings from my own career and my own experience that interviewing several hundred candidates throughout my 10 years of experience. I would love to share all those insights, tips, and also a lot of resources that can help you out to get started with your own journey. Okay. Without any delay, I'll share my screen and start my presentation. Jahan pe bhi aapko questions lage, please feel free to drop those questions in the chat. We'll take breaks in between and we will take it up. Okay. This session aapke liye hai, and I want you guys to understand everything. I kept things very simple, ensure that you understand everything, right? To leverage this opportunity for yourself. Okay. Any question you should feel free to ask. I hope you can see my screen, right? And I'll also have some questions for you. Please have your chat open so that you can type in those responses. Okay. Let's get started. So what are we going to talk about today, right? I have few points that I wanted to chat with you, right? I'll start by introducing myself. I'll walk you through my career a little bit. And I'll also help you understand what all the careers available out there in the market today. I'm sure everybody who's after their engineering,
or anybody you hear from it, generally will say like, oh, there is a lot of opportunities in coding. You should just learn a coding and start your career into that. But there are several other paths, several other job roles that are available, which I would like to introduce to you today in detail. Now, once you've seen all of these career paths, then I would like to touch upon how will you decide what will be the right career for you, and how would you start preparing for those interviews and preparing yourself for that career. Right? And if you're already somebody who's working and are already in a career, then how you should be thinking of your next opportunity. And at last, we will keep some 10 minutes to just address questions. And in between, after every section, also I'll pause and I'll check the chat to address your questions. Okay. So quick introduction about me. I'm Shrikant. I have 10 years of experience. I did my engineering at IIT BHU. Somehow the image is not coming. Right by my college, we started a startup. We are like 4 guys. We started our own startup, which after the college, we did not sit for placements. We wanted to make it a unicorn, like everybody's dreams. हम लोग एक apartment ले लिया and we sat there for 6 months and we went through a lot of rant. Then we got acquired by a company called Times Internet. We scaled our business to several hundred employees, just 4 of us, where I got immense learning into, hey, what is technology, what is business, what is product, what is design, what is support, what is sales, what is marketing. We hired so many people. I personally interviewed so many of them, built those teams, and also trained those teams to scale and excel. Post that, I took an exit and I joined a company at Adobe, where now I'm building a new product which is powered by Gen AI, and I've built several products powered by AI in the last 6 to 7 years. So I would love to share all my insights into this career transitions, and also insights from several hundred candidates interviews. Let's start with first, right? What are the different types of roles that are available? That's the first thing that we should start with. If not, because of lack of understanding of what are the opportunities available, we tend to stick with what we know. That limits your potential of growing in different areas. So I have a question for all of you. Can you type in the chat, what are your current role? What is your current role? आप क्या कर रहे हो अभी? Student हो, looking for a job, a fresher हो, right? Or are you already doing a job? Can you just type in the chat? हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे, बिल्कुल. Office job, हिंदी, okay, sure, हिंदी में बात करेंगे आपसे. Fresher, there is a founder also searching for job. Fresher हैं, civil engineer, freshers, 8 years of experience. Awesome. So काफी सारे freshers हैं, right? College अभी खत्म हुआ. Wonderful. Okay, so काफी सारे freshers हैं. I think then this जो information अभी हम share करेंगे, it will be quite valuable. ठीक है? I hope work from home भी है, freshers. Thank you so much for everybody जिन्होंने आपने response दिया. Whoever जिसने भी response नहीं किया, ensure आप respond करिए. This is for you. ठीक है? So next जाते हैं. देखिए, एक job function समझने के लिए एक example लेके मैं समझाना चाहता हूँ क्या क्या jobs available हैं in general. Okay, आप OYO ऐप यूज किए होंगे काफी सारे लोग, राइट? इन जनरल कोई भी ऐप यूज करते होंगे, राइट? एक ऐप से समझते हैं क्या क्या फंक्शंस होता है, राइट? एक ऐप को बनाने के लिए कौन चाहिए होता है इन जनरली हमें पता है कि ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं, राइट? इंजीनियर्स एंड टेस्टर्स, उस टाइप की जॉब फंक्शन चाहिए होगा एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, राइट? एंड उस एप्लीकेशन कैसे दिखेगा उसको बताने के, उसको करने के लिए डिजाइनर्स, राइट? देयर इज अ डिजाइन एज अ जॉब फंक्शन. देन इसको ऐसा बनाना है, क्या सॉल्यूशन बनाना है, कैसे काम करेगा, ये डिसाइड करता है प्रोडक्ट मैनेजर. ओके, तो ये थोड़ा बैकएंड फंक्शन है जो हमें दिखते नहीं है, बट यही लोग बनाते हैं इसको, ऐप को, राइट? फर्दर अगर ऐप के अंदर देखे तो आपको ऐड जो दिख रहा है इधर, ये करता है मार्केटिंग टीम, राइट? अब ऐड के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा वो कंटेंट राइटर्स लिखते हैं, राइट? एंड जो सपोर्ट होता है, जैसे आपके कोई इश्यू होता है ऐप में, या आपकी कोई ट्रांजैक्शन में सपोर्ट चाहिए होता है, तो आप हेल्प टेक्स्ट में जाके आपको चैट करते हैं या कॉल करते हैं ना, तो वो करता है कस्टमर सपोर्ट. ये सब भी जॉब रोल्स है, राइट? ये सब कोई जॉब नौकरी कर रहा है इस फंक्शंस में, करेक्ट? सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग वैसे क्या क्या फंक्शंस हैं एक जनरल कंपनी में,
राइट? तो हमने देख लिया इंजीनियरिंग, डिजाइन, प्रोडक्ट मैनेजर्स जो एक्चुअली पीछे से इसको एप्लीकेशन को रियलिटी में बनाते हैं, एंड मार्केटिंग टीम जो डिसाइड करता है कितना डिस्काउंट देना है, कब देना है, राइट? वी कीप हियरिंग एंड लिसनिंग अबाउट इट। तो उस मार्केटिंग में क्या कंटेंट होगा, राइट? वो डिसाइड होता है, कंटेंट राइटर्स लिखते हैं उसको, और सपोर्ट हेल्प करता है कस्टमर्स को, उसकी कोई भी दिक्कत हो उसको टैकल करने के लिए। एंड फाइनेंस होता है, यार कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, पैसा आता है, उस पैसा का क्या हुआ, कब से आया, कहाँ आया, कितना खर्च हुआ, कितना प्रॉफिट रह गया, उस प्रॉफिट को कहाँ यूज कर रहे हैं, सबको सैलरी दिया कि नहीं, ये सब मैनेज करने के लिए एक फाइनेंस टीम रहता है, राइट? एक फाइनेंस एज ए जॉब फंक्शन, राइट? देन ऑपरेशंस एक जॉब फंक्शन होता है। जैसे ओयो में सबका रूम्स एंड होटल्स लिस्ट होते हैं, तो हर होटल के पास जाके उसके रूम के फोटोज लेना, उसके डिटेल्स समझना, उस डिटेल्स को ऐप के अंदर ऐड करना, राइट? उस होटल्स को जो भी चाहिए होता है उन सबको मैनेज करने के लिए जो टीम रहता है उसको ऑपरेशंस टीम कहते हैं, राइट? वो ऑपरेशंस टीम ऑल्सो इज ए बिग टीम, काफी सारे रोल्स रहते हैं उसमें, क्योंकि काफी कुछ मैनेज करना होता है ना। जितने भी होटल्स देख रहे हो, हर होटल का आपके पास फोटो ऐप में दिखता है, कैसे? दिस ऑपरेशंस टीम मैनेज दैट, ठीक है? एंड नेक्स्ट आता है डेटा साइंस। हमने काफी सुन रहे हैं आजकल एआई एआई करके, राइट? जैसे भी आपको ओयो ऐप देखेंगे या गूगल सर्च करेंगे, जो आपको रिकमेंडेशंस दिखते हैं दूसरे किसी और को दिखते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं, राइट? तो ये कैसा हो रहा है, इसके लिए एआई यूज इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए एक जॉब फंक्शन है डेटा साइंस, राइट? एंड फर्दर इनके बिना, इनके अलावा भी कंपनीज में और भी जॉब फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लीगल एंड प्राइवेसी, लीगली इसको कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या डेटा यूज कर सकते हैं, क्या डेटा यूज नहीं कर सकते हैं, एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब कुछ देखभाल करने के लिए एक टीम रहता है, उसको लीगल एंड प्राइवेसी टीम कहते हैं, राइट? एंड देन कस्टमर रिलेशंस। अब ये कस्टमर्स तो ओयो ऐप यूज कर रहे हैं, रूम्स तो बुक कर लेते हैं, राइट? वो एंजॉय, दे एंजॉय देयर स्टे, बट होटल के साथ का रिलेशनशिप बना के रखने के लिए एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स रहते हैं, जो इन कंपनीज, इस रिटेलर्स और ये होटल ओनर्स के साथ बात करके, रिलेशनशिप मेंटेन करके, उनको हमेशा ऐप के अंदर सही दामों में लिस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक कस्टमर रिलेशंस रहता है। एंड देन फाइनली ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सबके जॉब फंक्शंस में लोगों को हायर करने के लिए ये फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, विच इज एचआर, राइट? सो इतने सारे जॉब फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की जॉब्स हम अप्लाई कर सकते हैं। टू गिव यू एक जस्ट, मैंने एक लिस्ट ऑफ सारे रोल्स निकाल के, जो फ्रेशर रोल्स हैं, राइट? दिस आर नॉट एक्सपीरियंस्ड रोल्स, मैनेजमेंट रोल्स नहीं है, जो एंट्री लेवल जॉब रोल्स होते हैं हर एक जॉब फंक्शन में, मैंने वो सारे लिस्ट निकाल के आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जस्ट टू हाईलाइट कि इतने सारे रोल्स होते हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, राइट? नॉट जस्ट कि कोडिंग है, आपको कोर्स करना है और कोडिंग ही सीखना है। अपने को आप देख रहे हैं तो इंजीनियरिंग में भी ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में कम रोल्स हैं, इंजीनियरिंग में बहुत सारे, सॉफ्टवेयर डेवलपर डायरेक्टली हो गया, बैकएंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, फुल फुल स्टैक हो गया, डेवऑप्स हो गया, एसआरई, क्वालिटी विच इज टेस्टिंग, मोबाइल ऐप डेवलपर्स, ऐसे बहुत सारे रोल्स है टेक्नोलॉजी में कि काफी जगह पे हमें आराम से दिख जाते हैं। इसके बिना भी इतने सारे रोल्स हैं विच ऑल्सो अलाउज यू टू गेट इन टू आई टी इंडस्ट्री, और वहां पे एक नया जॉब आपके लिए, एक जॉब आप ढूंढ सकते हो। अब इतने सारे रोल्स हैं, इतने सारे जॉब फंक्शंस हैं, आपको सोच आ रहा होगा यार कौन सा वाला सही है, राइट? क्या मैं, किस में मैं अप्लाई कर सकता हूँ और कैसे सीख सकता हूँ अप्लाई करने के लिए, इजंट इट? अब कितने लोगों को लग रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि ये सारे नया नया कुछ चीज है, आपने कुछ सुना आज की डेट में? इतने सारे रोल्स क्या आपको ऑलरेडी पता है? कितने लोगों को लग रहा है ये बहुत सारे नया रोल्स लग रहे हैं सब, राइट? देयर आर लॉट ऑफ न्यू रोल्स, राइट? तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बस हमें नहीं पता। ये सारे रूल्स अगर हमें पता होता, आई आई विश मैं अगर कॉलेज से बाहर आते वक्त अगर इतना सारा इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले पता होता तो मैं कितना कुछ पहले प्रिपेयर होकर रहता। हमें नहीं पता, और हमें कॉलेज में भी सिखाते नहीं है ये सब चीजें, राइट? इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, राइट? सबके लिए हिंदी जरूरी है, सबके लिए इंग्लिश जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? फॉर फ्यू रोल्स इंग्लिश इज मैंडेटरी, बाकी के लिए इतना मैंडेटरी नहीं है, बट इंग्लिश इज ऑलवेज गुड टू हैव। जितना इंग्लिश रहेगा उतना आगे बढ़ सकते हो जल्दी। अभी क्या है, क्यों ऐसा है? इट्स नॉट कि इंग्लिश एक पढ़े लिखा ही होना चाहिए और इतना फैंसी नहीं की बात नहीं है। इंडिया बहुत डाइवर्स है ना, हर स्टेट में अलग भाषा बोली बोली जाती है ना, हम हर भाषा को सीख नहीं सकते हैं, राइट? अगर आपको एक कस्टमर सपोर्ट मेंबर है, राइट, ओयो में ही अगर कस्टमर सपोर्ट में अगर आप काम कर रहे हो, तो ओयो के रूम्स तो दुनिया, इंडिया, पूरा इंडिया में कहीं पे भी बुक हो सकते हैं,
राइट? और कोई भी कस्टमर को इश्यू आया तो आप कैसे बात करेंगे उनसे, राइट? उनको अगर हिंदी नहीं आया तो कैसे बात करेंगे, राइट? तो थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना जरूरी है। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, अभी तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर ये क्लास में नहीं है तो अलग सेशन में आपको बिल्कुल ही आपको वो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे स्टार्ट कर सकते हो सीखने में। ओके, एंड बिल्कुल फोकस करिए इंग्लिश सीखने में भी। एंड यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको इतने सारे रोल्स अवेलेबल हैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए, राइट? सो होपफुली ये नया चीज, नया इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, राइट? कि अगर इतने सारे जॉब रोल्स हैं, कैसे डिसाइड करूं मेरे लिए क्या सही है, राइट? व्हाट इज द राइट करियर फॉर मी? अगर मैं, मेरे को कुछ भी नहीं आता इन सब में, कैसे डिसाइड करूंगा कौन से वाले में मैं जाऊं, किस में अप्लाई करूं, राइट? तो वो उसके बारे में एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं। राइट, मैं चैट में देख रहा हूँ, बीच बीच में आपके क्वेश्चंस भी आंसर करूंगा बिल्कुल, राइट? सोशल मीडिया मैनेजर क्या का क्या रोल होता है, सोशल मीडिया मैनेजर का क्या रोल होता है? जैसे अब अगर हम पीछे जाते हैं, मार्केटिंग, अगर सोशल मीडिया किसके लिए होता है, एक बिजनेस को सोशल मीडिया किस लिए यूज करते हैं? ताकि सोशल मीडिया में जितने भी लोग हैं उनको मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं ये ऑफर करता हूँ, ये कम्युनिकेट करने के लिए सोशल मीडिया को यूज करते हैं, राइट? कि या मैं ओयो हूँ, या मैं फ्लिपकार्ट हूँ, मैं अमेजोन हूँ, मेरे अमेजोन में एक नई डील चल रही है, ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर को कैसे बताऊं? टीवी के ऐड देख रहे हो आप, राइट? बट आज की डेट में टीवी से ज्यादा लोग मोबाइल देखते हैं, राइट? इंस्टाग्राम में ज्यादा है, फेसबुक में ज्यादा है, लिंक्डइन में ज्यादा है। तो इस वाले, इस यहाँ जहाँ पे लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहां पे मैं कैसे कम्युनिकेट करूं कि मेरे यहाँ पे एक सेल चल रही है, या मेरे यहाँ में ये ऑफर चल रही है, मेरे यहाँ पे हम ये बेचते हैं, राइट? ये सर्विसेज देते हैं, इसको कैसे कस्टमर को कम्युनिकेट किया जाता है? ये सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। तो एक सोशल मीडिया मैनेजर ये देखता है कि यार मैं कौन से कस्टमर को क्या एड्स दिखाऊं, क्या मैसेज दिखाऊं, क्या पोस्ट दिखाऊं, कि वो लोग को, उन लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोग ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं या ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, राइट? awesome, नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन लेके आई मूव फॉरवर्ड आफ्टर दैट। अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? अकाउंट एग्जीक्यूटिव ये होते हैं, जैसे कि सारे आप amazon में या ओयो रूम में भी आप लोग एग्जांपल दे रहे हैं, अगर लेंगे तो क्या ओयो में कौन कौन से टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं? एक जो वो होते हैं जो होटल बुक करेगा, दूसरा वो है जो होटल रन करता है, राइट? होटल रन जो करते हैं वो रूम्स प्रोवाइड करते हैं, राइट? अगर ये जो होटल रन करते हैं, इनको ओयो से कोई भी काम करानी है, उनके लिए अलग ऐप रहता है, हम रूम बुक करने के लिए अलग ऐप रहता है। अब ये जो होटल ओनर्स हैं, इनको जो भी दिक्कत आता है, जो देखते हैं, उस एक टीम रहता है जो इनके लिए है, जो होटल ओनर्स को कोई भी इश्यूज आते हैं, कुछ भी सपोर्ट चाहिए होता है, वो लोग देखते हैं। कस्टमर, जो जनरल कस्टमर सपोर्ट रहता है, वो कंज्यूमर के लिए, जो रूम्स बुक कर रहे हैं उन लोगों के लिए अलग रहता है, और बिजनेस ओनर्स के लिए अलग रहता है। ये अकाउंट, ये होटल ओनर को बिजनेस ओनर कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो होटल एक बिजनेस वो चला रहा है ना, उस बिजनेस ओनर के साथ। अब जो बड़े बड़े बिजनेस होटल्स वाले रहते हैं, राइट, उनके लिए तो एक डेडिकेटेड पर्सन रहना पड़ेगा जो रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, उनके उनके अकाउंट में देखेगा कि यहाँ सारे अकाउंट रूम्स सही से लिस्टेड है कि नहीं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन कहीं पे गलत नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन सब कुछ है, ये सब कुछ देखभाल करते हैं। और कुछ भी इशू होता है तो ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव उनसे बात करता है। सेम बैंकिंग में भी होता है ये। बैंक्स में हम लोग जाके आप बैंक की आपके आपके अकाउंट खोलते हैं, अगर बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके अकाउंट जो खुल गया, जिसके पास बहुत सारा पैसा उसमें रखते हैं और उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हैं बैंक से, तो उनके लिए एक डेडिकेटेड मैनेजर रहता है जो उनके लिए रहता है, जो वो हमेशा उनको कॉल करके कुछ भी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ऐसी टाइप की अकाउंट्स को, बड़े अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए एक टीम रहता है, उसको अकाउंट मैनेजर बोलते हैं। असम, यस। सो अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं 10th पास हूँ, मैं कॉलेज ग्रेजुएट अभी हुआ हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं दूसरे तरीके की बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मेरे लिए कौन सा वाला रोल सही रहेगा, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, राइट से बहुत वैलिड क्वेश्चन है। सो दैट्स वेयर हम नेक्स्ट सेगमेंट में जा रहे हैं, हाउ डू वी डिसाइड कौन सा करियर पाथ बेस्ट है मेरे लिए, राइट? तो उसके लिए एक 3 सिंपल स्टेप्स हैं आपको फॉलो करना है, जो आपको समझ में पता, बट ये मेहनत लगेगा, मेहनत करना है, मेहनत करने से ही मिलेगा।
पर वो मेहनत किस डायरेक्शन में करने से आपको सबसे ज्यादा फल मिलेगा, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, राइट? तो 3 सिंपल स्टेप्स में आप पहले समझिए आपको आपकी गोल क्या है। फर्स्ट स्टेप इज यू शुड स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ, कि आपने आप से स्टार्ट करिए, कि आपको समझना है कि आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपको क्या आता है, राइट? क्या ऐसी स्किल्स है जो आपको आता है, क्या स्ट्रेंथ्स है आपकी, क्या वीकनेसेस है आपकी, क्या करना आपको पसंद आता है, क्या सीखना क्या पसंद आता है, राइट? कहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हो जो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मजा आता है, इवन इफ इट इज इंस्टाग्राम में भी, राइट? बहुत अलग अलग तरीके की पोस्ट देखते हैं, अलग अलग की वीडियोस देखते हैं, आपको बहुत पसंद आ रहा है, कि आपको वैसी कंटेंट बनाना अच्छा लगता है या सिर्फ देखना अच्छा लगता है, राइट? आपको नेगोशिएशन स्किल्स अच्छे लगते हैं, या कौन से ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं, स्किल्स हैं आपके अंदर, वो पहले आप समझिए, राइट? आपको टेक्निकली चीजें समझ में आती हैं या आपको इंटरेस्ट है टेक्निकली, अगर नहीं है तो जबरदस्ती उसकी कोर्स करके आपको वहां पे इतना अच्छा फल नहीं मिलेगा, राइट? सो आपको पहले समझना है कि क्या आपको आता है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या नहीं आता है। अगर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं आता, आपके पास कुछ तो कुछ आता है, आपको परस्यू करना है, पता करना है क्या कर सकते हो, क्या आता है क्या नहीं आता, और आपको क्या करना है, ये क्लैरिटी होना चाहिए। या मेरे को यहाँ पहुंचना है, या मेरे को यहाँ पे ये अचीव करना है, या ये रोल में अचीव करना है, ये एक कंपनी में जॉब लेना है, ऐसे क्या गोल है, आपको पहले वो सोचना पड़ेगा, राइट? सेकेंड, चाहे फर्स्ट स्टेप अगर वो समझ में आ गया आपको कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपके, क्या स्किल्स हैं आपके, और क्या आता है क्या नहीं आता है, राइट? अगर वो क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट है क्या मेरे लिए क्या रोल सही है, राइट? मैं देखता हूँ कि काफी सारे लोग, ये होता है कि कुछ भी जॉब दे दो मेरे को, जॉब करना है, राइट? उसमें क्या होता है कि आप कुछ भी जॉब ले लेंगे, क्या अगर उसके लिए आप रेडी नहीं रहोगे, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, स्किल नहीं है, तो उसमें आप इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे कि वहां पे आप स्ट्रगल करोगे, राइट? इट्स बेटर कि हम सीखें, समझें, मेहनत करें, उसके बाद सही रोल में जाएं और वहां पे एक्सेल करें, ठीक है? सो इंश्योर आप वो स्किल्स अपने आप समझिए, उसके बाद जॉब रोल्स लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करना है। आप जॉब रोल्स कैसे फाइंड करें कि कौन सा वाला मेरे लिए सही है, राइट? तो उसके लिए आपको देखना होगा यार हर एक रोल का वो रोल होता क्या है, राइट? इतने सारे रोल्स मैंने दिखा दिया यहाँ पे, राइट? इतने सारे रोल्स हैं अपने पास, ये सारे रूल्स हैं क्या, करते क्या है ये सारे जॉब फंक्शंस, राइट? अभी आपके पास ये लिस्ट है, आप हर एक लिस्ट में निकाल के आप गूगल में सर्च करिए, यार ये मार्केटिंग एंड सेल्स करते क्या है, ऑपरेशंस करते क्या है, जो आप क्वेश्चंस यहाँ कर रहे हैं, यू हैव ये आपको करना चाहिए कि डिजाइनर करता क्या है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट करता क्या है। गूगल में सर्च करने से आपको बिल्कुल वीडियोस इतने सारे मिल जाएंगे, इतने सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, जो समझाएंगे आपको हर एक रोल का क्या मतलब है और करते क्या है, राइट? अगर वंस एक बार सारे देख लिया, तब आपको एक आइडिया है ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसमें होता क्या है, राइट? अगर वो होने के बाद आपको क्या सही लग रहा है, क्या आपको रिलेट कर रहे हो, क्या उसको आपको समझ में आ रहा है, क्या बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही है, राइट? उससे आप समझ के आप शॉर्टलिस्ट करिए कि इनमें से कौन सी चीजें मेरे को समझ आ रही हैं, कौन सी चीजें मुझे मजा लग रहा है, कौन सी चीजों में मैं एंजॉय करूंगा लग रहा है, राइट? पहले वो समझना जरूरी है, वैसे शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा आपको। सिंपली कुछ नहीं, ये सारे लिस्ट निकालिए, इस लिस्ट से एक एक रोल को पकड़िए, अगर जो रोल आपको ऑलरेडी पता है वेल एंड गुड, जो नहीं पता है उसको आप गूगल सर्च करेंगे और पता करेंगे कि क्या होता है इसमें, राइट? जब एक बार समझ में आ गया कि सब क्या होता है, उसके बाद आपको अपने आप को देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्किल्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और ये जो रोल्स में क्या मैच करता है। इस सब में बहुत टाइम लगेगा, बट बहुत जरूरी है आप ये टाइम लगाएं, राइट? तभी आपको सही रोल जॉब मिलेगा जहां पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ समझने के बाद, ये तो ओके सब समझ गया, ये जो 3-4 जॉब्स लग रही है मेरे को, अगर इंटरेस्टिंग लग रही है या मेरे को करने का शौक है, तो मैं इसको आगे बढ़ूंगा। इसके बाद अगर 3-4 चीजें जो आपको लगे, 3-4 रोल्स जो आपको लगे कि हाँ यार ये थोड़ा लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, उसके बाद हमें उस रोल के बारे में ज्यादा जानकारी और डीप लेना है, राइट? हमें अभी अभी तक हम हाई लेवल समझे कि क्या क्या होता है इसमें, अब वी हैव टू गो फर्दर एंड आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक एक वो जो 3-4 रोल्स जो मैंने निकाला, वो उसमें एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रोल्स क्या है, राइट? एक एक रोल निकालिए, उसके अंदर डीपली गूगल सर्च करिए जाके, इसमें
कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं इस रोल में, और वो जॉब्स का लिस्ट आएगा, राइट। उस लिस्ट में जाके जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन करके लिखा होगा ना हर एक रोल में, उसको एक बार पढ़िए, समझ में है क्या होता है। जो भी चीज नहीं समझ आ रहा है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, आपको उसको निकालना है, वापस सर्च करना है, ये है क्या, हो क्या है इसमें, ये मतलब क्या होता है इसका, ये आपको सर्च करना है। इससे आपको डीपली समझ में आएगा, इसमें आपको डीपली समझ में आएगा एक एक रोल में ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और अगर आपको दिखाऊं तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को सही लगा अकाउंट एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सक्सेस मैनेजर, ऐसा मान लेते हैं, मैनेजर जॉब्स, ये मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल में, ठीक है। मेरे को यहाँ पे दिख रही है बहुत सारे जॉब्स, राइट। मैं एक जॉब में जाऊंगा जाऊंगा और यहाँ पे मेरे को डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, राइट। इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 साल के एक्सपीरियंस चाहिए, मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन एंड नोट टेकिंग एबिलिटीज चाहिए, तो ये स्किल्स चाहिए इनको, राइट। एंड देन अच्छा टाइम मैनेजमेंट एंड क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इतने सारे वर्ड्स हैं, राइट, इन सबका मतलब क्या होता है, राइट। वहां पे आगे आपको बढ़ना है। और यार इसमें टाइम मैनेजमेंट क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल्स मतलब क्या होता है, वापस मैं गूगल में जाऊंगा और सर्च करूंगा क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है। तो ऐसा आपको समझना पड़ेगा एक एक रोल आपके लिए क्या सही होगा, ठीक है। जब आप इतना थोड़ा अच्छे से ये सब समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा 2-3 रोल्स जो आपने शॉर्टलिस्ट किया उसमें कौन सा रोल में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज उस रोल में जो भी ऑलरेडी लोग हुए जो जॉब कर रहे हैं उस रोल में, राइट, उनसे बात करना चाहिए, जितना हो सके उतना रीच आउट करना चाहिए। कैसे रीच आउट करेंगे, उनसे कैसे बात करेंगे, उससे कैसे पता चलेगा उस रोल में कौन है, राइट। अगेन आप गूगल में चाहिए, सिंपल, राइट, कस्टमर सक्सेस। एक तो लिंक्डइन में जा सकते हैं आप, सिंपली लिंक्डइन एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको प्रोफाइल बनाना ही बनाना चाहिए। लिंक्डइन ऐसे सोशल मीडिया है जहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स रहते हैं। आप लिंक्डइन में अपना अकाउंट बनाइए, उसके बाद सर्च सर्च करिए कस्टमर सक्सेस मैनेजर, ठीक है। आप कस्टमर सक्सेस मैनेजर से जैसे ही सर्च करेंगे उसमें पीपल में जाएंगे तो ये सारे सबके सब अभी आज की डेट में कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स हैं जो इस रोल में आप भी काम कर रहे हैं, राइट। इनमें से किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मैम मैं इस करियर में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, क्या आपकी मेरे को 5 मिनट या 10 मिनट मिल सकती है, थोड़ा गाइडेंस मिल सकता है। और मैं ये नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपको ही बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपने करियर चेंज करने के लिए ये किया। मैंने खुद 50 लोगों को मैंने रीच आउट किया, उसमें से 2 लोग रेस्पॉन्ड किए। उन दोनों लोगों ने मेरे को इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया जो मेरे को बहुत हेल्प हुआ नेक्स्ट इंटरव्यूज में। ये करना पड़ेगा और करना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा रियल वर्ल्ड में इस रोल में लोग क्या करते हैं, कैसे वहां तक पहुंचे। बिकॉज सबकी सिचुएशन अलग है, सबके लिए रोल्स अलग इंटरेस्टेड हैं, तो आपको वो समझने के लिए ये सब कर सकते हो। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो बाद में आपको वापस इस रिकॉर्ड में जाके मैंने ये सब क्या किया वो आपको देखना है तो वापस देख सकते हो, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब आकर रोल आपको समझ में आया, अगर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ये हम समझ सकते हैं नेक्स्ट, राइट। उससे पहले मैं एक बार क्वेश्चंस और किसी का भी क्वेश्चंस हो तो एक बार देख लेता हूँ। Can I see the chat? Yes. Can BCom students enter into OPER or operational roles? Absolutely. ऑपरेशन रोल्स के लिए इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है कि ये एजुकेशन बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, वो नहीं है। ऑपरेशन रोल्स में ये जरूरी है आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, एक्टिवली काम कर सकते हो ज्यादा लोगों से, राइट। एंड कुछ भी काम जितना जल्दी आता है उतना जल्दी आप कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में और कितना जल्दी उस काम को आप कंप्लीट कर सकते हो, ये सब देखा जाएगा, राइट। ऑपरेशंस वो ऐसी एक ऑपरेशंस, कस्टमर सक्सेस, कस्टमर रिलेशनशिप्स, अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स, ये सब ऐसे रोल्स हैं जिसमें बैकग्राउंड ज्यादा नहीं चाहिए, बट वो स्किल्स चाहिए जो आप विदाउट कोई बैकग्राउंड सीख के जा सकते हो। देन और भी क्वेश्चंस है कि माय सन जस्ट कंप्लीटेड इलेक्ट्रिकल engineering course in ECE, electronics and communication, what kind of jobs for him?
देखिए, इन एनी काइंड ऑफ बीटेक, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में आप ईसीई किए हैं, सीएसई किए हैं, और एनी ऑफ द अदर ब्रांचेस, अगर उनको कोडिंग और ये जॉब्स में आईटी में जाना है तो डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट इस टाइप की कोर्सेज हैं, वो बहुत वो सीख के उसमें अप्लाई करा जा सकता है अगर उसमें इंटरेस्ट है तो। अगर उनके कोर में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस किया है और कोर में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उसी में मैं देखना चाहता हूँ, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री अलग हो जाएगा, आईटी इंडस्ट्री नहीं रहेगा। वहाँ पे आप पीएसयूज में देख सकते हो जॉब्स। पर इन जनरल अगर कोर में जाना है, हमेशा ये एडवाइजेबल है कि आप बीटेक के बियॉन्ड भी करें, चीज लाइक एमटेक, और करेंगे तो ज्यादा जॉब्स आपके लिए खुलेंगे रादर देन जस्ट बीटेक, अगर कोर में जाना है। नहीं, आईटी में जाना है तो आपको आपके बेटे को या बेटी को, माय सन सॉरी, बेटे को डेवलपमेंट अगर जाना है तो डेवलपमेंट कोर्सेज कर सकते हैं। नहीं, अगर कोडिंग ये सब कुछ नहीं समझ आ रहा है, जो मैं अभी तक समझा रहा हूँ कि इतने सारे रोल्स हैं, उनमें बिल्कुल आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और सारे रोल्स वेरी क्लोज टू क्लोज वंस जो आपके लिए सही रहेगा। यू कैन ट्राई फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स रोल्स। Generally lot of BTech students also try into ये sales and customer success, customer services, customer support नहीं बोल रहा हूँ, customer successes बोल रहा हूँ, which थोड़ा marketing and sales side में आएगा, वो roles explore कर सकते हैं, which is अगर coding ये सब कुछ इतना अच्छे से नहीं आता हो तो। Okay, MBA marketing, Shrikant, yeah, one person has raised hand for some time. okay, Monirul Khan, Monrel Khan, please. आपको कोई सवाल है तो आप चैट में डाल सकते हैं, बिल्कुल। या आप अनम्यूट करना चाहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, आपने ये कोर्स किया है या आप इसमें जाना चाहते हो? ये किया है, राइट। तो हार्डवेयर नेटवर्किंग आपने काम किया, तो ये जो रोल्स मैंने दिखाया था, राइट, अगर डायरेक्ट सारे आईटीज में कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग नहीं रहता है, राइट, उस वाले कंपनीज जैसे आप, मैंने अभी जो बताया था कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का, शायद आप ऑलरेडी जॉब्स अप्लाई कर रहे होंगे। अगर कर रहे हो तो सेम फॉर्मेट देखना होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग में लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाइए और सर्च करिए इस वाले कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग में कौन है ऐसे लोग जो जॉब करते हैं आज की डेट में। ये करते भी हैं, कोई है भी कि नहीं, राइट, बिल्कुल रहेंगे, राइट। तो उनमें से सबको मैसेज करिए, सर मैं आपको या मैम आपको एक 5 मिनट 10 मिनट ले सकता हूँ, मैं इसके लिए जॉब्स में जाना चाहता हूँ। तो 10 को 20 को 40 को 50 को आपको मैसेज करिए, आई एम श्योर एक या दो रेस्पॉन्ड करेंगे, और समझिए उन रोल्स में क्या कर रहे हैं वो लोग और जॉब्स कहाँ हैं, राइट। और समझिए ऐसी क्या और स्किल चाहिए होगा इसके बियॉन्ड जो आपको सीखना जरूरी है ऐसी रोल्स और जॉब्स लेने के लिए। तो बिल्कुल सेम एक्सरसाइज आपको सबको करना चाहिए, राइट। हाउ टू अपस्किल बाय डूइंग सम कोर्सेज थ्रू इंटर्नशिप्स, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, इनफैक्ट रोल प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना होगा मैं अभी बात करूंगा। मैं एमए परस्यूइंग है, जॉब मिल सकती है, मुझे जॉब मिल सकती है क्या सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट? हर किसी को जॉब मिल सकती है, राइट। जस्ट वो आगे बहुत मेहनत करना होगा, और मेहनत से डरेंगे तो नहीं बनेगा काम, राइट। सबने किया है, सबको करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, बस हम सब यहाँ आपके लिए ये हेल्प कर सकते हैं कि आपको मेहनत किस डायरेक्शन में करना है, सो दैट आपको ये सक्सेस बहुत जल्दी से जल्दी मिल सके, आपकी जॉब जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है। कोई और आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता, आपको ही खुद करना पड़ेगा। वो मेहनत कैसे करना है वो हम लोग हेल्प करेंगे आपको, राइट। कोई भी कोर्स भी होगा आप करेंगे तो कोर्स तो वो समझाएंगे, बट आप कितना समझा, आपने कितना समझा, और आपने उसमें समझने में जितना समझ के कितना काम करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। वो तभी होगा अगर आपने प्रैक्टिस किया, आपने बहुत एफर्ट लेके उसको समझा, उसके बारे में और रिसर्च किया, उसके बाद उसके ऊपर कुछ काम किया, राइट। तभी वो फर्क पता चलेगा जब आप
वो सब किया, और जिन्होंने वो सब नहीं किया उनको लग सकता है ज्यादा टाइम, आपको लग सकता है कम टाइम, आपको जॉब निकालने में, जॉब क्रैक करने में। ठीक है। Then there are more questions. I want to start my career as a BIM engineer. So what should be the best way to get? BIM engineer थोड़ा आप elaborate कर सकते हैं, BIM engineer मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हो। अगेन मैं इस सेक्शन के बाद वापस मैं पॉज करके आपके क्वेश्चंस ले लूंगा। Shrikant, I think Yeah, you can actually yeah, give the we'll move forward. presentation because Yeah, we will exceed the time. yeah, no, no, And we are in a good place. Yes, I move okay, forward. okay, cool, cool. सो हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज? ये बहुत जरूरी है, राइट? यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, और पर वो मेहनत कैसे कर सकते हैं और किस एरियाज में फोकस करना चाहिए। अगर आपको एक इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू क्रैक करनी है, तो पहले आपको स्टार्ट करना होगा वो रोल क्या है, वो रोल के बारे में जितना जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जितना ज्यादा प्रिपेयर्ड रह सकते हो, उतना अच्छा है, राइट? सो फॉर यू टू, अगर एक रोल के लिए प्रिपेयर होने के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट स्टार्ट कहाँ से करना है, कि उस रोल के लिए क्या स्किल्स चाहिए ये पता करना है। तो जैसे अभी मैंने गूगल करके दिखाया आपको, ये स्किल्स चाहिए, तो सबसे पहले वो स्किल्स के बारे में पता करेंगे, उस स्किल्स के बारे में कोर्सेज करना है, उस स्किल्स के बारे में वीडियोस देखना है, ब्लॉग्स पढ़ना है। उस स्किल को आपको एक्वायर करने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है, राइट? तो वो स्किल्स हर रोल के लिए अलग होंगे। आपने जो रोल्स ढूंढा, ठीक है, आप यहाँ इतने सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, हर कोई क्वेश्चंस यही पूछ रहा है कि मैं 10th हूँ, मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं फाइनेंस किया हूँ, मैं एमबीए किया हूँ, मेरे लिए क्या जॉब है। वैसा नहीं देखना चाहिए। आपको जॉब पहले डिसाइड करना होगा कौन सा करना है, उसके बाद आपको सारे प्रिपरेशन होगा, राइट? तो फर्स्ट आपको जॉब रोल्स, इतने सारे मैंने जॉब रोल्स दिए, जो एक्सरसाइज मैंने अभी बताया आप सबको, उन सारे जॉब रोल्स के बारे में पता करिए, तभी आपको समझ में आएगा आपके लिए क्या सही रोल है। जब आपको रोल ही नहीं पता होगा जिसमें अप्लाई करनी है, जिसके लिए प्रिपेयर करनी है, तो आप जॉब कैसे निकाल सकते हैं, राइट? अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे ऐसी रोल्स मेरे को चाहिए, तो सब में अप्लाई करेंगे तो किसी में भी आप एक्सेल नहीं कर पाओगे, राइट? और मुश्किल हो जाएगा जॉब लेना। कोई भी इंटरव्यू में अगर सेलेक्ट भी हुआ, वो इंटरव्यू क्लियर करना और मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो जैसे मैं हम शेयर कर रहा हूँ अभी इस प्रेजेंटेशन में, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्लीज फॉलो। वो फॉलो करके आपको एक रोल पता करनी है, रोल के अंदर क्या क्या स्किल्स जरूरी है, उस स्किल्स को पकड़ना है, उस स्किल्स के बारे में जानना है, और उन स्किल्स को सीखना है, कोर्सेस करके, वीडियोस देख के, ब्लॉग्स करके, और अपनी सैंपल वर्क भी करके। अगर आपको डिजाइनर ही बननी है, तो अगर आपको डिजाइनर में रोल्स में जॉब चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके खुद की एक डिजाइन्स बनाना चाहिए। अगर आपको मार्केटर बनना है, मार्केटिंग में जॉब लेनी है, तो मार्केटिंग कैंपेन्स अगर आपको बनाएंगे, अगर अगर आप एक ऐड बनाना है सोशल मीडिया में, तो कैसे बनाएंगे, राइट? वो आपको बनाना है। 3 4 5 एग्जाम्पल्स, 6 अपने आप एक प्रोजेक्ट लीजिए और उसको एग्जीक्यूट करिए, और उस एग्जीक्यूट करके उस ऐड को रखिए, तब क्या होगा? आपके काम होगा, राइट? देखिए, कोई भी जॉब इंटरव्यूज में, मैं भी अगर लेता हूँ, कितने सारे जॉब इंटरव्यूज में डिस्कशन दो डायरेक्शन में हो सकती है। एक, आपने क्या काम किया उसके ऊपर का बात हो सकती है। दूसरा, मैं क्या देख रहा हूँ एज एन इंटरव्यूअर, मैं क्या देख रहा हूँ, या मुझे क्या पता, उसके बारे में कॉन्वर्सेशन होगा। यही दो कैटेगरी में कॉन्वर्सेशन होगी, बात होगी, राइट? अगर बात सब ज्यादा से ज्यादा आपने क्या किया उस पे होगी, तो आपके ऊपर, आपके पास ज्यादा कंट्रोल है, ज्यादा चीज होगी बात करने के लिए। उसको छोड़ के अगर दूसरी डायरेक्शन में है, जाके मैं पूछूंगा मुझे क्या पता है और मुझे क्या चाहिए, आपको वो आपको वो आंसर्स, वो क्वेश्चन के आंसर्स पता होंगे, नहीं पता होंगे, ज्यादा ज्यादा चांस क्या है कि नहीं पता हो सकता है। तो कॉन्वर्जेशन कैसे हम, जो आपकी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा टाइम हम कैसे इंटरव्यू में ये बात करें कि आपने क्या किया, आपको क्या आता है, वो तभी पॉसिबल है जब आपने कोई काम करके रखा हो। आपकी जॉब नहीं है, कैसे काम करेंगे? खुद से प्रोजेक्ट लीजिए और काम करिए। डिजाइनर हो तो खुद की डिजाइन बनाइए। मार्केटिंग में जॉब रोल में जाना है, खुद की मार्केटिंग कैंपेन्स बनाइए। अगर आपको कोडर बनना है, खुद की ऐप बनाइए, खुद की वेबसाइट बनाइए, खुद के लिए कुछ भी स्मॉल, छोटे से छोटे एक कैलकुलेटर बनाइए,
राइट? क्या अगर आपको अगर वापस आधार बनानी है, आप बना सकते हैं। अगर छोटी सी गेम बनानी है, आप बना सकते हो। वो दिखाता है आपको काम करना आता है। सिर्फ नॉलेज से नहीं होता है ना, नॉलेज को अप्लाई करना भी आता है, ये बहुत जरूरी है। तो जो भी तब वो क्या काम करोगे, इसको क्या क्या एप्लीकेशन बनाओगे, ये आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप रोल डिसाइड किया हो कि मेरे को ये रोल्स में जॉब चाहिए। अगर ये रोल में जॉब चाहिए तो इस रोल में ये स्किल्स चाहिए, इस स्किल्स को यूज करके ऐसे काम किया जाता है। मैं खुद से ये प्रोजेक्ट लेके ये ऐसी थोड़े एग्जांपल्स बना के रखूंगा, ताकि मैं इंटरव्यू में मेरे रिज्यूमे सिंपल प्लेन, मैंने ये ग्रेजुएशन किया, मैं ये रोल के लिए देख रहा हूँ, इसके बगैर ये रहेगा कि मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मैंने इतने सारे काम ऑलरेडी करके रखा हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस इन रियल वर्ल्ड। तो कॉन्वर्जेशन और बेटर होगा। वो कॉन्वर्जेशन इसके बारे में होगा कि आपने ये सब कैसे किया, right? आपने ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तब आपके पास जवाब भी होगा। ठीक है? तो बहुत बहुत जरूरी है कि आप रोल फाइंड आउट करें, किस रोल्स में आप अप्लाई करना चाहते हो, और उस रोल के लिए क्या चाहिए वो सीखिए। वो सीखने के बाद उसको अप्लाई करिए और खुद से प्रोजेक्ट लेके उसका काम करिए। वो आपको आपकी पोर्टफोलियो बनेगी कि मेरा पोर्टफोलियो ये है, मैं इतने काम कर चुका हूँ। किसी ने काम नहीं किया, नहीं दिया, फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद से लेके ये काम मैंने किया, और इस काम को आप प्रेजेंट कर सकते हो। हर किसी को जिसको काम आता है वही चाहिए, है कि नहीं? तो आप कैसे दिखाएंगे आपको काम आता है? तो ये एक तरीका है, आप अपने लिए कर सकते हो। ठीक है? दूसरा, जो रिज्यूमे बना रहे हो, ये बहुत अगेन बहुत क्रिटिकल है। आपको कोई भी रोल में शॉर्टलिस्ट होनी है तो रिज्यूमे बनाना होगा। मैं कई बार देखता हूँ कि हर टाइप ऑफ रोल के लिए एक ही रिज्यूमे भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना है। रिज्यूमे हर जॉब रोल के लिए अलग बनाना पड़ेगा। उस रोल के अगेंस्ट क्यों अलग बनाना पड़ेगा? उस रोल में अगर जो भी इंटरव्यूअर लेना चाहता है कैंडिडेट को, वो क्या देखता है, यार इसको मेरे जो जॉब के लिए ले रहा हूँ, वो जॉब के लिए ये इसको काम आता है कि नहीं आता है, ये सही है कि नहीं, ये समझना है ना। तो अगर मैं आपके रिज्यूमे में ऐसा कोई भी रिलेटेबल कंटेंट नहीं है, तो मेरे को क्या लगेगा, पता नहीं इनको क्या आता है। करेक्ट? तो अपने रिज्यूमे में ये चीज हाईलाइट करना होगा। जैसे मैं बताया हूँ, इधर जो कॉन्वर्सेशन, जो इंटरव्यू में डिस्कशन क्या होगा, ये बात पे होगी कि आपको क्या आता है, ये बात पे होगी मेरे को क्या आता है, राइट? मेरे को क्या चाहिए एक कैंडिडेट से, राइट? इसको रिलेवेंसी बोलते हैं ना, उस जॉब के लिए क्या रिलेवेंट है, आपको क्या आता है। तो इधर आपकी एक्सपीरियंस पे बात किया जा सकता है या आपकी स्किल के ऊपर बात किया जा सकता है। एक्सपीरियंस मतलब आपने क्या किया, स्किल मतलब मेरे को जॉब चाहिए, राइट? ये आपको पास है कि नहीं, ये दोनों में कॉन्वर्जेशन होगी। तो आपके रिज्यूमे में भी ये चीज हाईलाइट होनी है। आपके रिज्यूमे जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस रोल के लिए आपको ये हाईलाइट करनी है कि उस रोल के लिए के रिलेटेड कोई भी काम जो आपने किया हो वो हाईलाइट होना चाहिए। खुद से प्रोजेक्ट लेके भी कर रहे हो वो भी हाईलाइट करना होना चाहिए। खुद से कोर्सेज भी किए हो उस जिसके लिए ये रोल के लिए रिलेटेड है, वो भी हाईलाइट होना चाहिए, राइट? और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एटलीस्ट स्किल्स हाईलाइट होना चाहिए। इस जॉब रोल के लिए ये स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स को हाईलाइट करिए, ताकि वो कॉन्वर्जेशन में, उस डिस्कशन में वो चीजें के बारे में बात हो सके। ठीक है? आप जिस जॉब की डिस्क्रिप्शन जितना ज्यादा से अच्छे से पढ़ेंगे, उसके लिए उधर से जितना भी इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स निकाल के अपने रेज्यूमे में डालेंगे, उतना ही चांस बढ़ेगा आपके रेज्यूमे सेलेक्ट होने का। इनफैक्ट काफी सारे लोग बहुत इनोवेटिवली नए तरीके से रेज्यूमेस बनाते हैं। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने पहले देखा एक रेज्यूमे ऐसा था, एकदम सिंपल सा, प्लेन सा। ऐसे तो बहुत सारे रेज्यूमेस हैं, राइट? पर इनको एक ट्रैवल इंडस्ट्री में जॉब लेनी है, तो उन्होंने अपना रिज्यूमे बदल दिया ऐसा। अपने खुद से कहीं पे भी कुछ नहीं, काम नहीं दिया, अपने खुद से एक एक का ट्रैवल एक पैकेज बनाया, खुद से ट्रैवल पैकेज बनाया, और उसके बारे में डिटेल्स हाईलाइट करी, फोटोज डाला, और समरी में हाईलाइट किया, स्किल्स हाईलाइट किया। आप ये देख रहे हैं, किसी ने काम नहीं दिया इनको, खुद से अपने आप से काम लिया और प्रोजेक्ट्स बनाए, और उन्हें उसको हाईलाइट किया। अब ये रिज्यूमे इसको इनको डालने के बाद विद इन फर्स्ट डे को 3 इंटरव्यू कॉल्स आए,
वो कैसा हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने रिज्यूमे को चेंज किया, पर्सनलाइज किया। अगर ट्रैवल कंसल्टेंट बननी है मेरे को, तो उसके रिलेटेड क्या प्रोजेक्ट्स मैं निकाल के खुद से करूं और स्किल्स को हाईलाइट करूं। ये सब करना मुश्किल लगेगा, बट शुरू करेंगे, बहुत आसान है करना। शुरू ही नहीं करते हैं सबसे ज्यादा लोग। ठीक है, तो इंश्योर करिए ये सब समझिए और अपने आप ट्राई करिए। और लास्ट, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन। अभी तक आप रोल के लिए प्रिपेयर किए हैं, रिज्यूमे अपने क्रिएट किया, अब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? राइट, एक अगर किसी की इंटरव्यू में सेलेक्ट किया, तो फर्स्ट आपको करना है उस कंपनी के बारे में जानना। राइट, उस कंपनी के बारे में कैसे जानेंगे? वापस आपको दिखाता हूँ, आपको रियल टाइम करके दिखा रहा हूँ सब कुछ। राइट, आप वापस गूगल में जाइए। राइट, और वहां पे आप सर्च करिए, लेट्स से प्रैक्टो। प्रैक्टो करके कंपनी में आपको जॉब लिस्टिंग आया, तो प्रैक्टो क्या है, इस कंपनी के बारे में देखिए। राइट, व्हाट इज प्रैक्टो, इतना सिंपल है, आप इसको सर्च कर सकते हो। राइट, व्हाट डज प्रैक्टो डू, लो यहाँ मिला। आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं वीडियोस में जाके। राइट, प्रैक्टो ऐप फ्री कंसल्टेशन फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज। वीडियो देखिए, समझिए ये कंपनी क्या करती है। इसके बाद सिर्फ इस कंपनी को ही नहीं, इसके कॉम्पिटिटर्स को भी समझना है। वो कैसे पता चलेगा? सिंपल लिखेंगे प्रैक्टो कॉम्पिटिटर्स। राइट, देखिए आपको यहाँ इतने सारे लिंक्स आए हैं, आप उसमें जाइए और उसमें देखिए प्रैक्टो की कॉम्पिटिटर एमफाइन करके एक और कंपनी है। देखना एमफाइन क्या करती है। वेलकम क्यूर करके एक कंपनी है, वो क्या करते हैं। हेलो डॉक्टर करके एक कंपनी है, वो क्या करते हैं। ये समझना जरूरी है, क्योंकि उस इंडस्ट्री में ये लोग कहाँ पे हैं, इसके कॉम्पिटिटर्स कहाँ हैं, और ये लोग क्या करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंपनी के बारे में समझिए, कंपनी की कॉम्पिटिटर्स के बारे में समझिए, सो दैट आप अगर कॉन्वर्जेशन जब भी बात होगी, वो जो कुछ भी बात कर रहे हैं तो आपको आराम से समझ में आएगा। तो ये बहुत बहुत जरूरी है आपकी कंपनी के बारे में समझना। दूसरा स्टेप क्या है कि आप इस रोल के लिए पहले कोई भी इंटरव्यूज हुए हो, उसके में क्या क्वेश्चंस पूछा, तो अपने लिए प्रिपेयर करना है। उस जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो उसके लिए हमें प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है glassdoor.co.in। राइट, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए ये वेबसाइट में आपको सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। ये लिंक सारे मैं आपको दे दूंगा, मेरे स्लाइड्स में भी हैं, आपको मिल जाएगा। तो ग्लासडोर में अपनी अकाउंट बनाइए और क्वेश्चंस पूछिए। राइट, कस्टमर, और सिंपली आप गूगल भी कर सकते हो, कस्टमर सक्सेस मैनेजर इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखिए इसमें इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। राइट, और ऐसा कोई कॉमन क्वेश्चंस तो होंगे, हर इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। राइट, आपके बारे में बताइए, ये तो हर इंटरव्यू में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। मैं सिर्फ आपसे नहीं बोल रहा, मैंने खुद भी किया है। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरा अपना प्रिपरेशन डॉक, ये देखिए डॉक्यूमेंट बनाया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैंने अपने लिए लिखा पूरा कि मैं क्या बोलूंगा, क्या बात करूंगा। राइट, ये व्हाट इंटरेस्ट यू, ये क्वेश्चन लिखा मैंने। व्हाट इज योर टिपिकल डेली रूटीन, ये सारे क्वेश्चंस मैंने निकाला, इसी सेम एक्सरसाइज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस निकालो और सबके आंसर्स मैंने खुद लिखा। आप देखिए ना, यहाँ पे मैं 2019 में ये बनाया हूँ, अभी लेटेस्ट नहीं है। जब मैं जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहा था तब मैंने ये किया है सब कुछ, और ये काम करता है। राइट, इससे क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए और प्रिपेयर रहोगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। राइट, और बहुत चांस है कि यही क्वेश्चंस आपको पूछा भी जाएगा। ठीक है, आप फ्रेशर हो, कोई भी पर्सन हो, खुद से ये सारे क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालिए, अपने लिए एक डॉक बनाइए और अपने लिए एक आंसर्स लिखिए। और वैसे क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा तो आपने आंसर कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके इंटरव्यू। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम ये सब कुछ करें। तो ये मैंने एक स्लाइड बनाया आपके लिए, सारे लिंक्स यहाँ है। जॉब सर्च करने के लिए कौन से वेबसाइट है, रेज्यूमे बनाने के लिए कौन से वेबसाइट है, इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालने के लिए कौन से वेबसाइट है, एक मॉक इंटरव्यू करनी है तो कौन से क्या क्या वेबसाइट लिख सकते हो, कोर्सेज करनी है तो कौन कौन से वेबसाइट में जा सकते हो, नेटवर्किंग करनी है तो कौन से वेबसाइट में जा सकते हो। ये सारे वेबसाइट्स की लिस्ट मैंने यहाँ बना के आपके लिए रखा है। आप इन सब में जा सकते हो, जब भी जैसे भी बनानी है, जिसको जहाँ यूज करना है यूज कर सकते हो। राइट, इन सबको इस्तेमाल कर। अब नेक्स्ट आता है कि अगर कोई भी प्रोफेशनल जो आज की डेट में अगर जॉब करता भी है, ऑलरेडी कर रहे हैं,
तो उनको लिए नेक्स्ट कैसे प्रिपेयर करा जा सकता है उसके लिए मैं 2 मिनट लोग समझाऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस में आ जाएंगे। एक जॉब करियर को 3 स्टेजेस में समझ सकते हो आप। लॉन्च पैड, मतलब जो फ्रेशर स्टूडेंट्स पहली बार अपने जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फोकस करेंगे स्किल्स एंड नॉलेज में सबसे ज्यादा, राइट। रिज्यूमे प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा प्रिपेयर फोकस करेंगे। जो ऑलरेडी जॉब है उनको ग्रोथ चाहिए, राइट। जो 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं उनको ग्रोथ चाहिए, तो उनको उनको वो कहाँ फोकस करेंगे? जो ऑलरेडी स्किल्स है उनको ऑल एक्सपर्ट लेवल में स्किल्स में कैसे लेके जा सकते हैं, उस पे फोकस करना पड़ेगा। नेटवर्क को कैसे इम्प्रूव करें, वो फोकस करना पड़ेगा, ताकि मेरे नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा सीनियर्स मेरे रोल के और अच्छे स्टेज पे रहने वाले लोगों अगर से मैं कनेक्ट है, तो मैं उनसे सीख सकता हूँ और उनसे मैं रिकमेंडेशन भी ले सकता हूँ कि मैं कोई भी कंपनी में या कोई भी रोल के लिए अप्लाई करने के लिए, राइट, रेफरेंस ले सकता हूँ, रिकमेंडेशन ले सकता हूँ, उनसे सीख सकता हूँ कि वहां तक वो कैसे पहुंचे। तो एक नेटवर्किंग एंड अपस्किलिंग ग्रोथ जोन में बहुत जरूरी है। अब तीसरा आता है कि अगर ग्रोथ भी हो रहा है आपका, लीडरशिप पोजीशन मैनेजर पोजीशंस में जाना है, तो आपको सिर्फ अपस्किल नहीं रीस्किल करना पड़ेगा। एक जो जैसा आप अभी काम कर रहे हो वैसा काम करने से और आगे नहीं बढ़ सकते हो, एकदम नए तरीके से करना पड़ेगा। वो कैसे सीख सकते हो? वो अपने नेटवर्क से ही सीख पाएंगे आप वो नेटवर्क कैसे बनाएंगे? जब आप पहुंच जाएंगे, एक जॉब मिल गया, उसके बाद अपने नेटवर्क को, लिंक्डइन है और भी नेटवर्क्स वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाइए और आपके सीनियर रोल्स में अगेन उन लोगों से रीच आउट करना, देखना वो लोग क्या कर रहे हैं, सीखना उनसे कि क्या करते हैं, वो वहां तक कैसे पहुंचे हैं, कितना टाइम लगता है, क्या स्किल्स की वजह से वो वहां पहुंचे हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है। और उन सीखने के बाद आप उनमें फोकस करेंगे, उसकी उस तरीके की कोर्सेज करेंगे, उस तरीके की वीडियोस देखेंगे, ब्लॉग्स देखेंगे, सीखना पड़ेगा, राइट। और फाइनल लास्ट एक और स्लाइड है, उसके बाद हम रोक पॉज करेंगे। अगर आप ग्रोथ जोन में हो, जो ऑलरेडी आप जॉब करते हैं, राइट, और आपको और आगे बढ़नी है, ये एक और 3 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत फायदा हो सकते हैं। पहला, अगेन, आप जहाँ है, क्या वो काम आपको मजा आ रहा है? क्या वो काम में और आगे बढ़ने का मन है या कुछ नया चीज करने का मन है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जॉब आने के बाद ये ऐसा पनिशमेंट नहीं लगना चाहिए कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये जॉब, राइट। अगर वैसा लगेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, और आपका काम इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे कि आप और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। वो नहीं होगा जब तक वो आपके काम में आपको मजा नहीं आता है, राइट। तो आपको समझना है कि ये काम आपको अच्छा लग रहा है या आगे और भी करना है कि नहीं, कर कुछ और करना है, राइट। आपकी जो भी गोल था, वो गोल पहुंचने के लिए ये हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो अब टाइम है कुछ और नया चीज सीख के नया नया रोल में जाने का, राइट। जैसे कोई भी पर्सन एक बार जॉब में आ गए, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एक और वापस एक और फ्रेशर में जाना नहीं चाहेंगे, राइट। एक कम सैलरी में तो नहीं जाना चाहेंगे, ज्यादा सैलरी में जाना है और एक्सपीरियंस पर्सन पे जाना है। एक एक्सपीरियंस पर्सन से हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है कि उनको काम बहुत अच्छे से आता है, राइट। तो आपकी जो भी स्किल है उसमें और एक्सपर्ट बनने के लिए आपको जो भी कोर्सेज करना पड़े, जो भी प्रोजेक्ट करना पड़े, जितने भी जिनसे भी बात करना पड़े, वो आपको करना पड़ेगा। तो अपना 2 ही पॉइंट्स है, अगर अपनी काम आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है, उस इंडस्ट्री उस रोल में जो भी एक्सपर्ट्स ऑलरेडी है उनसे मिलना है, उनसे कनेक्ट करना है और उनसे सीखना है कि उन्होंने वहां तक कैसे पहुंचे। अगर वो जॉब आपको इतना पसंद नहीं आ रहा है, या कुछ और में कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, जो भी मैं शुरू से अभी तक समझाया हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए हूँ, बहुत सारे तरीके एंड टिप्स ट्रिक्स भी बताए हूँ, वो सब कुछ आपको फॉलो करके आप वापस अपने आप को एक नया रोल में मूव कर सकते हो। ओके, विद दैट मैं क्लोज करता हूँ प्रेजेंटेशन। आपके पास कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो मैं अभी क्वेश्चंस लूंगा, और भी क्वेश्चंस आप अपने चैट में डालिए। पहले आप सब बताइए, आपको ये सब कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, कुछ नया चीज सीखा आपने? चैट में बताइए। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, मेरे को सबसे सुनना चाहता हूँ क्या क्या आपने कुछ नया सीखा, समझा? ये सब हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, आप अपना चैट में डालिए। और कोई भी और भी क्वेश्चंस हैं वो भी डालिएगा प्लीज।
ग्रेट। तो मैं स्लाइड स्टॉप करता हूँ। अब हम सीधा क्वेश्चंस लेंगे, कमेंट्स लेंगे। सो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेस, लिंक्स, वेबसाइट्स के बहुत सारे, वो सब कुछ मैंने वहाँ पे स्लाइड्स में है। टीम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो सब यूज करिए। राइट, आगे बढ़िए। सो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, देखिए ये कहाँ, पहले ये आपको समझना पड़ेगा ये ऐसी जॉब कहाँ है, ये कहाँ इस्तेमाल हो किया जाता है। राइट, को पता है कौन से कंपनीज में होता है कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर, हार्डवेयर नेटवर्किंग, जिन्होंने भी क्वेश्चन किया आप? तो ये अगर, आई डोंट नो आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो आप चीज नहीं पता तो पहला वो पता करना है। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का जॉब्स क्या क्या हैं, रोल्स क्या क्या हैं, वो पता करिए। अगर वो पता करने के बाद कौन कौन सी कंपनीज में ऐसी जॉब्स हैं जो मैंने आपको दिखाया था गूगल में कैसे सर्च करना है, राइट, आप वो सर्च करना, वैसे रोल्स क्या हैं वो सब वो समझिए। अगर आपको ये जानना है कि यार कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, वो जो एरिया है वो ग्रोथ बहुत अच्छे से करेगा ही, आगे जाके और करेगा, बट काफी एडवांस्ड रहेगा। राइट, उस एडवांस के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, एआई आ गया, तो सारा कंप्यूटर नेटवर्किंग हार्डवेयर बहुत इंप्रूव हो गया, बहुत बदल जाएगा अगले 5 साल में। तो वो क्या है अभी, कैसे बदलेगा, ये सब कुछ समझने के लिए पहले आपको करंट रोल में क्या होता है, कौन से ऐसी कंपनीज में ऐसी जॉब्स हैं, ये पता करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके सर, एमबीए फ्रेशर के लिए अच्छा है या फिर एमबीए फ्रेशर्स के लिए अच्छा है या फिर वर्क एक्स लेके जाना अच्छा होगा? देखिए, आप एमबीए क्यों कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। राइट, क्या आपको एमबीए करना है बिकॉज आपको एक बिजनेस फंक्शन में जॉब लेना है, या आपको जॉब नहीं लग रही इसलिए एमबीए करना है? राइट, ये जरूरी है समझना। राइट, अगर आपको ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपको एमबीए करके अपस्किल करना है और आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल आप वर्क एक्स लेके एमबीए करिए, ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि एमबीए में भी जब इंटरव्यू के लिए कंपनीज आएंगे, वो उनसे ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस हो। ठीक है सर, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रेज्यूमे में प्रोजेक्ट ऐड करना जरूरी है क्या? देखिए, आप ऐसे इस तरह दूसरे तरफ से भी समझिए, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको किसी कैसे लोग चाहिए, वैसे लोग चाहिए जिसको काम आता है। राइट, कोई चैरिटी तो करना नहीं चाहता, राइट, कोई भी कंपनी, राइट, उनको लेना चाहता है जिनको काम आता है। आप कैसे प्रूव करेंगे आपको काम आता है? आप खुद से कोई भी प्रोजेक्ट्स लेके करेंगे तो 10 में से एक बंदा ऐसा होगा जो ऐसी प्रोजेक्ट्स किए होंगे, तो आपकी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे अगर आप वो काम किए होंगे तो आप खुद से प्रोजेक्ट लीजिए, उसके लिए आपका ही फायदा है, आपको चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आपको उस इंटरव्यू में सेलेक्ट होने का। क्योंकि एज ए इंटरव्यूअर मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि इनको काम आता है, क्योंकि इन्होंने ये काम किया है। पर ये क्वेश्चन, अब ये अगर क्वेश्चन समझिए कि मैं प्रोजेक्ट करे बिना अप्लाई नहीं करूं, ऐसा नहीं है। आप अप्लाई जरूर करिए, इंटरव्यू जरूर दीजिए, हर इंटरव्यू से सीखिए, पर सब में प्रिपेयर हो रही है, पैरेलली प्रोजेक्ट्स करते रहिए। जैसा प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे वो रिज्यूमे में ऐड होता चला जाएगा और अपनी इंटरव्यूज इंप्रूव हो जाएंगे। राइट, तो बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी, जब मेरे को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब स्विच करनी थी, कम से कम 40 इंटरव्यूज दिए हैं, और सबसे पहले सारे 15 से 20 इंटरव्यू सब रिजेक्ट हो चुका हूं मैं। राइट, जरूरी है रिजेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 10 20 21 22 वाला अपना इंटरव्यू होगा जो इसमें हम सेलेक्ट होंगे। तो उससे पहले जितने भी इंटरव्यू फेल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कुछ बुरा मान फील होने की कोई जरूरत नहीं है, उससे कुछ सीखेंगे और इम्प्रूव हो जाएंगे। सो विद दैट आई विल क्लोज Siddharth. I think it's we're up time. I hope everybody enjoyed the session. Yeah, I was just stopping the chat as well because there are a lot of questions coming in. Mm. If you want, we can take one more. I mean, Okay. generalize because most Mm. of them are asking like they have a bit of technical, as I understand, a bit of technical expertise.
थोड़ा बहुत skills उन्होंने इकट्ठा किए तो what is the next step is what is so in a general like conclusion if you want to आप श्योर श्योर देखिए, तो ऐसे क्लोजिंग स्टेटमेंट आप ऐसा समझ लीजिए, जिन्होंने भी कोई भी काम, कोई भी स्किल ऑलरेडी है, तो स्किल से अपने आप से खुद से प्रोजेक्ट लेके अपना पोर्टफोलियो बनाइए। उससे क्लियरली सबको इंडिकेशन मिलेगा कि आपको काम आता है, राइट। दूसरा, जिनको नहीं पता है, आपने आप कभी कोई स्किल अभी तक पता नहीं है, आपको पता नहीं कि किस में जॉब में जाना है, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि रोल्स क्या क्या होते हैं, उस रोल के लिए क्या स्किल्स चाहिए होता है, वो पता करना है, और उस स्किल्स को आप सीखना जरूरी है। जैसे स्किल्स को सीख जाएंगे, उसको अप्लाई करके अपना प्रोजेक्ट खुद से बना के स्टार्ट करिए। क्या प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, अब वो भी गूगल कर सकते हो कि मैंने ये सीखा, लार्वा सीखा, पाइथन सीखा, जावा सीखा, मैं क्या ऐसे पर्सनल प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, ये भी आप गूगल कर सकते हो। गूगल करिए, देखिए वीडियोस जो होंगे ऑलरेडी जिन्होंने प्रोजेक्ट किया होगा, एज इट इज खुद से करिए, देख के, कुछ भी नया नहीं, वो भी चलेगा, राइट। पर अपने आप से काम करना स्टार्ट करना, राइट। सो दैट विल बी माय क्लोजिंग स्टेटमेंट। माय रिकमेंडेशन इज, आप अपने से खुद से काम करना स्टार्ट करिए, वो काम ही आपको आगे लेके जाएगा, आपके सिखाने के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। Awesome. Thank you. Thank you so much, Srikanth, for joining us today, Sure. for sharing your expertise. It was wonderful. I think we addressed the maximum questions as possible. It was a very interactive session. Thank you for sharing your expertise with us. Sure. Guys, इसी के साथ आज we are ending today's session. I hope all of you found this useful and we were able to address your doubts and queries. A quick reminder, I have shared the feedback form multiple times. Please fill that. It will help us improve the sessions. कुछ suggestions भी थे जो मैंने note किया है आगे के sessions के लिए. We'll keep doing that. हम श्रीकांत को भी वापस लेके आएंगे एक session के लिए. तो सब आप feedback form fill करेंगे. If you fill the feedback form, it will really help us. Also, you can visit the अपना exclusives website जिसका लिंक मैंने डाला है. वहाँ पे आपको इस सेशन का रिकॉर्डिंग और प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स पे मिल जाएंगे. You'll get the recordings of this and previous sessions as well. You can check the upcoming events and register for them there. You can also register by joining the Apna community and commenting interested on the event announcements posts that we make there. As mentioned earlier, we'll keep we'll keep hosting sessions like these every day. So that's it. Thank you so much, Srikanth. Thank you, guys. Yeah, Thank thank you. you, Apna team. Take care, Yeah. guys. Have a good evening. Take care. Bye.